After so many years, ladies and gentlemen, after so many years, the president yesterday signed on a document which approved delimitation of constituencies, Lok Sabha and Assembly constituencies in Assam. And this is a significant milestone that's been achieved, and that's what Chief Minister Himanta Biswa Sarma actually tweeted, and I've got the tweet here. He says, today the Honorable President has approved the delimitation notification issued by the Election Commission of India for Assam. A significant milestone has been achieved in the history of Assam. Jai Ma Bharati, Jai I Assam, that is Mother Assam. And this is the Rajpatra that he has actually tweeted. This is signed the Gazette of India, and it's signed by the Honorable President herself, where she says that the notification, Ministry and Law and Justice, go ahead with delimitation in the Assembly constituencies and Lok Sabha constituencies of Assam. Immediately, it's triggered a big political fight, a furor. Let's dive into the entire political debate with Gaurav Gogoi of the Congress Party saying that the government is just rushing into a decision which has been pending. Mind you, the last time delimitation happened in Assam was way back in 1976, after which multiple suggestions were made for delimitation, but it was vehemently opposed by political parties at different times. Even now, what we are seeing is that there has been even now what we see is that there has been opposition coming in from the Congress Party and the AIUDF. Let's try and look at some of the reasons and some of the aspects that have come to the fore on this delimitation exercise, what this implies and what this means. Delimitation process is based on the 2001 census. This is the key facet. Village, lowest administration unit in rural areas, and ward, the lowest administration unit in urban areas. Assembly seats for SCs increased to 9 from 8, and there are also assembly seats for STs that have increased to 19 from 16. Using the 2001 census data is yet another major concern. Using this 2001 census data, opposition has challenged the EC's methodology in Supreme Court and saying that when the matter is there, it's being challenged, this methodology is there, why push for the notification? That's the first question that's been asked. Why the rush is what's been asked. The other point is that Assam comes under the entire NRC. There was a need for doing NRC or a registry of citizens because the brazen influx of Bangladeshis, Rohingyas or non-Indians into Assam, and that needed to be understood. There is also the political ramification, what this delimitation would do or what's being claimed. We should have Sanju Verma, spokesperson of the BJP, joining us any moment now, but we have Champak Kalita, spokesperson of the AIUDF, joining us. Namaste and Jai Hind. What is the biggest opposition that the Congress and the AIUDF have to this move for delimitation and the notification being signed by the President? देखिए, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश. जी, आप हिंदी में बोलिए. हिंदी में बोल सकते? हाँ जी, बोलिए. जी. देखिए, ये जो राष्ट्रपति जी द्वारा ये जो डिलिमिटेशन का साइन किया गया, इसका फाइनल किया गया, इसको ये एक सीए के बाद असम के लोगों को एक बार फिर धोखा दिया गया. ये डिलिमिटेशन के नाम पे धोखा दिया, इससे पहले सीए में धोखा दिया. और खास तौर पे जो मूल निवासी है असम के, जो आपका रिलीजियस माइनॉरिटीज जो है, जो मजहबी अक़लियत है, जो मूल निवासी है, उनको धोखा दिया गया. उनका सीट आप 31 से लेके आप कह रहे हैं असम के मूल निवासी आज असम में माइनॉरिटी है. नहीं, जी आप कह रहे हैं असम के मूल निवासी आज असम में माइनॉरिटी हैं, ये कैसे हो गया? नहीं, असम के जो मूल निवासी में से एक इम्पोर्टेबल निवासी है, मूल निवासी है असम के रिलीजियस माइनॉरिटी. हाँ, उनका 9 सीट घट गया है. इंडिजिनियस पीपल का 9 सीट घट गया है. और ये टोटली आपका आरएसएस बीजेपी का ब्लूप्रिंट है, और जिसको एग्जीक्यूट इलेक्शन कमीशन ने किया. वो जो इंडिजिनियस पीपल है जिनका 9 सीट घट गया है, उनका आरएसएस और बीजेपी से उनका क्या बैर है? नहीं, वो रिलीजियस माइनॉरिटी है ना वो लोग.
तो रिलीजियस माइनॉरिटी होने से क्या हो गया? वो SC ST पे वो किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं आते हैं। वो उन पांच मूल इंडिजिनस लोगों में नहीं आते जिनकी व्याख्या हेमंत बिस्व शर्मा ने की हुई है कि इन लोगों को हम रिलीजियस माइनॉरिटीज में से इन सेक्ट्स को हम इंडिजिनस मानते हैं और इनके प्रोटेक्शन के लिए हम काम करेंगे। नहीं, आप दूसरी लाइन पे जा रहे हो, आपका कोई एजेंडा होगा, अलग बात है। मुझे नहीं मैं कौन सी लाइन पे जा रहा हूं? मैं तो आप ही की लाइन पे जा रहा हूं। एजेंडा आपका क्या है मैं पूछ रहा हूं। क्या असम के पूरे असम की आप बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर तबके की आप बात करते हैं? नहीं, अगर आप कल पावर में आ गए तो आप पूरे असम के सब लोगों के लिए काम करेंगे, पूरे स्टेट के लिए काम करेंगे कि एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए ही काम करेंगे? आसाम को फिर से धोखा दिया गया। कैसे धोखा दिया गया? कैसे धोखा दिया गया? सीए का आसाम से क्या लेना देना है? नहीं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का आसाम से क्या लेना देना है? असम का लेना देना एनआरसी से है। एनआरसी तो अभी भी लागू नहीं हुआ। आपको मालूम ही नहीं है। आप नेशनल टीवी में आके बैठ के मुंह उठा के आ गए, आपको मालूम ही नहीं है। हाँ, करेक्ट। ये आप अपने आप को कह रहे हैं कि मुझे कह रहे हैं? क्यों लेन-देन नहीं है? क्यों लेन-देन नहीं है? आपको मालूम ही नहीं है आसाम के बारे में? फिर कुछ नहीं, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन्स का आसाम से लेना देना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का आसाम से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको नहीं पता है? आप पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि दोनों में कितना अंतर है? संजू वर्मा देखिए, मैं तो मुंह उठा के चला आया हूं। मुझे पता ही नहीं है कि CAA 2019 अलग है, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन्स अलग है। मुझे नहीं पता है। मुझे पता ही नहीं है। संपक कालिता जी को सब पता है। नहीं पता मुझे, लेकिन आपको थोड़ा I need my time to speak. Yeah, go ahead, Sanjay. Thank you, Anand ji. First and foremost, I just want to say this, that this entire delimitation exercise, it went all the way to the Supreme Court, and the Supreme Court, led by Justice Chandrachud, clearly said that it will not intervene in the Election Commission of India's decision to undertake the delimitation process. But yes, if at a later stage the opposition parties have any specific issues, the apex court will hear that. So point number one, this indirectly has the sanction of the Supreme Court. The Election Commission, wide Article 3, 24, 25, 26, 27, has the powers to give notification pertaining to delimitation. So you cannot question this, because Election Commission at the end of the day is an autonomous constitutional authority. Point number three, the delimitation exercise has been validated by no less than the first citizen of India, the President Draupadi Murmu in this case. Now the most important thing, we are all aware that the last delimitation exercise, Anand, happened in 76 based on the 1971 census. Now this delimitation exercise has happened, I admit, based on the last 2001 census of 2001, but people who have been saying 2001 का census क्यों लिया? So let me tell you that the delimitation exercise based on 2001 census is valid under Article 82 and under Article 170 of the Constitution. आपको कोई दिक्कत है तो जाकर संविधान का अनुच्छेद। दिक्कत तो ऑपोजिशन को ये है संजू जी, कि ऑपोजिशन का ये कहना है कि ये RSS बीजेपी का एजेंडा है अगेंस्ट मूल निवासी जो रिलीजियस माइनॉरिटी है। आपने उनकी 9 सीटें छीन ली है, और उनका तो आरोप यह है कि आज तो सारे इंस्टीट्यूशंस को आपने घेर लिया है, सब आपके इशारों पे नाचते हैं। आनंद, वन थिंग विच योर ऑडियंस नीड्स टू नो कि असम की ओबीसी पॉपुलेशन लगभग 25% है, द दलित पॉपुलेशन इज 7.15%, द ट्राइबल पॉपुलेशन इज 12.45%, एंड द रेस्ट इज जनरल कैटेगरी। तो ये बेसिस विच सेंसस 2001, 2011? This is based on the 2011 census. Okay. I will make that very clear. But I need to make one point very clear, that one of the big reasons for undertaking this delimitation exercise was to ensure that the Dalit population of 7.15% and tribal population of 12.45%, which means that Dalits plus tribals together account for 19.6, almost 20% of Assam's population, and they were not well represented in assembly constituencies, ACs, or in parliamentary constituencies, PCs. And I'll just tell you one of the biggest changes, which I think is very pro-Dalit and which is very pro-Adivasis / pro-tribals. Earlier, Dalits
had 8 ACs, 8 assembly constituencies. That has been raised to 9. Parliamentary constituency एक रिजर्व की गई है शेड्यूल कास्ट के लिए, दलित्स के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. Now 19 assembly constituencies have been reserved Compared to 8. and 2 Lok Sabha parliamentary constituencies have been reserved. My simple point is this कि जिस राज्य में लगभग 20% संख्या दलित्स और आदिवासी की है, वहां पर इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड लोकसभा सीट्स में this 20% is not given adequate representation, and if the delimitation exercise has corrected a historical wrong, तो कांग्रेस के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, उनका दर्द ये है कि आपने ये सीटें जो दी है 20% आबादी के लिए जो आप कह रही हैं, वो सीटें किसी और से छीन कर दी हैं. वही तो चंपक कालिता जी कह रहे थे अभी तक. चंपक जी क्या कहेंगे आप? मैं पहली बात ये कहता हूं, आसाम में दलित नहीं है. ये मोहतरमा इंडिया का पॉलिटिक्स में वो दलित का वो ले रहा है, लेकिन आसाम में कोई दलित नहीं है. पहली बात, ये गलत बयानी कर रहा है नेशनल टीवी में बैठ के. और दूसरी बात, अगर 26 में डिलिमिटेशन होना ही है सारा इंडिया में, जिसमें इंक्रीज होगा, सीटें बढ़ेगी, तो एक इलेक्शन के लिए इतना बड़ा टैक्स पेयर का इतना बड़ा पैसा क्यों बर्बाद करना है? और दूसरी बात है, डिलिमिटेशन होता है रेशनिंग के लिए कि अपना संख्या, वोट की संख्या मिल जाए. पहले आसाम में क्या था, एक कंस्टिट्यूएंसी में 97,000 था, एक कंस्टिट्यूएंसी में 4,02,000 था. और अब भी ऐसा हो गया कि एक कंस्टिट्यूएंसी 2 लाख के नीचे है, एक कंस्टिट्यूएंसी 3 लाख के ऊपर है. तो डिलिमिटेशन का फायदा क्या है? और इन्होंने जो पहले डिलिमिटेशन होता था डिलिमिटेशन कमीशन के जरिए, अभी चुनाव आयोग ने खुद किया है, इसीलिए उन्होंने ABC कैटेगरी बनाया है वो बर्थ कंट्रोल का. ये इनका काम नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग कभी भी निष्पक्ष नहीं है. ये पहले एक बार बोला था सुप्रीम कोर्ट ने CBI के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट का तोता है, और ये भी तो अभी तोता मैंने सब बन गया है. उधर क्या है ना सर, चंपक कालिता जी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब केज पैरेट है. अभी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है. तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन होकर कह रहे हैं, तो उसको भी टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. लेकिन आपने कुछ आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, वो भी संजू वर्मा जी पे, कि वो बिना जाने नेशनल टीवी पे आके बोल रही है. तो संजू वर्मा जी बोलिए. Thank you. अभी चंपक, प्लीज, I did not interrupt him, आनंद. This is not fair. चंपक कालिता जी, मैंने आपको नहीं टोका, प्लीज. आपने यहाँ पर संजू वर्मा एक काम जो कभी नहीं करती है, वो है बिना होमवर्क के आना, वो भी आनंद नरसिम्हन के शो पर तो बिल्कुल नहीं. आप ये वेबसाइट पर जाइए, इस वेबसाइट का नाम है censusindia2011.com, और censusindia2011.com में असम की पूरी पॉपुलेशन हिस्ट्री, सेक्स रेशियो, कंपोजिशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, सब कुछ डिटेल में दिया है. और मैं दोबारा रिपीट करती हूं, ये मैंने censusindia2011.com की वेबसाइट से निकाला है. 85.9% of Assam's population lives in urban areas, 14.1% lives in rural areas, and I repeat, 7.15% of the population is scheduled castes/Dalits, and 12.45% is scheduled tribes/Adivasis. तो मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने आपको मेरा सोर्स भी बताया है. And I want to just say one more thing. Please, let me finish. बीजेपी की एक प्रॉब्लम है. Let me finish. Anand, this is not fair. Anand, this is not fair. आसाम में हूँ. नहीं, एक मिनट. आप 2011 के सेंसस का दोष आप बीजेपी पे मत दीजिए, क्योंकि 2011 के सेंसस में बीजेपी नहीं थी वहां. जो आपके अलायंस पार्टनर्स हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं वहां पर, वही थे जो जिनकी पहले सरकार हुआ करती थी, उनके अंडर ये हुआ है. तब आपने इसको चैलेंज नहीं किया. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा शेड्यूल ट्राइब/दलित्स. उन्होंने ये नहीं कहा. तो वो पढ़ के बोला. या संजू जी, दलित क्यों बोला? अरे जो उसमें सेंसस वेबसाइट में लिखा है वो पढ़ा है सर. आप जाके यूपीए से लड़ाई कीजिए. आप गौरव गोगोई जी से पूछिए कि उस वक्त असम में ही. नहीं, अच्छा रुके संजू वर्मा, आप गलत पूछ पकड़ रहे हैं. सॉरी, गलत लाइन पकड़ रहे हैं आप. आर्ग्यूमेंट कुछ और है. आर्ग्यूमेंट डिलिमिटेशन से आपको तकलीफ क्यों है? 1776 के बाद स्टेट में डिलिमिटेशन नहीं हुआ, तकलीफ क्यों है? वही क्वेश्चन है. लेट संजू वर्मा कंप्लीट एंड देन आई विल गिव यू वन फाइनल वर्ड. चंपक जी. Anand, the other very interesting thing is that, as per Article 330, Article 330 and Article 332 of the Constitution, हमारे संविधान में ये प्रावधान है, under Article 330 and under Article 332 of the Constitution, that the scheduled castes and scheduled tribes and other marginalized communities need to be given adequate representation
in the Vidhan Sabha and in the Lok Sabha. I just want to ask कि जिस राज्य में लगभग 20% शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, और यदि बीजेपी ने एक हिस्टोरिक रॉन्ग को राइट करते हुए अभी 9 सीटें रिजर्व की हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 19 सीट्स रिजर्व की हैं विधानसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, तो व्हाई इज गौरव गोगोई rattled and he says that this will impact the minorities? Why should he be rattled that it will impact minorities? Has he forgotten that 40-50 years back the marginal the minority population in Assam was less than 16-17%. Today in more than 20 districts the population of minorities, and I will name them Muslims, is more than 43 to 44%. तो minorities कैसे हो गए? No, how are they? No. Forget the demographic. They are no longer minorities. They are actually majority. Exactly. The minorities are the scheduled castes and the scheduled tribes. The scheduled castes and the scheduled tribes are the minorities in Assam. If the data that you are currently saying is wrong. अच्छा चंपक कालिता जी, मेरे पास समय कम है, मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूँ, क्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को नहीं मिलना चाहिए रिप्रेजेंटेशन? 20% जो पॉपुलेशन है उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? 100% मिलनी चाहिए। और आज इन वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी में इलेक्शन कमीशन का क्या रोल था डिलिमिटेशन में? आज से 50 साल बाद जब रिसर्च होगा, स्टडी होगा, तब हिंदुस्तान और इलेक्शन कमीशन दोनों को शर्म से सर झुकाना पड़ेगा। नहीं, पर वो ठीक है, आप कह रहे हैं 20% जो आबादी है उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तो फिर आप डिलिमिटेशन के खिलाफ नहीं। डिलिमिटेशन किसने किया उसमें आपको तकलीफ है? आप ये कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन करो, रिप्रेजेंटेशन करो, लेकिन किसने डिलिमिटेशन किया वहां प्रॉब्लम है आपको। अरे आई एम नॉट पुटिंग माय वर्ड्स इन योर माउथ, इट इज योर माउथ, इट इज योर वर्ड्स, यू जस्ट सेड इट, सर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंफर्म, जो मैंने सुना, जो आपने कहा, दोनों सेम है कि नहीं है? एनीवे, चलिए इस डिबेट को अभी मुझे विराम देना पड़ेगा। आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। संजू वर्मा एंड चंपक कालिता जी, थैंक यू वेरी मच। लेडीज एंड